Hello students, in this video I Abhay Kumar going to deliver lecture 1 of the chapter Interference of Light in Physical Optics for class BSc Part 2 Physics. The topics to be discussed by me in this video will be coherent sources of light, production of coherent sources of light, and principle of superposition, that is theory of interference of light, analytical treatment or mathematical treatment. First of all, coherent sources of light. Coherent sources of light are those sources which emit light waves of same amplitude, same frequency, but phase difference between two light waves does not change with time. That is, phase difference remains constant. Phase difference always remains constant. Phase difference is expressed in terms of either angle और टाइम. तो वैसे सोर्स कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, जिनसे उत्पन्न होने वाले लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी, आयाम तथा आवृत्ति समान होता है, परंतु उन लाइट वेव्स के बीच में जो लाइट वेव्स कोहेरेंट सोर्सेस द्वारा इमिट किए जाते हैं, उनके बीच कलांतर फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलता है. तो वैसे लाइट वेव्स जिन लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहा जाता है. राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस. those sources of light which emit light waves whose phase difference, that is phase difference between two light waves, whose phase difference remains always constant. That is, phase difference does not change with time, remains always constant, are called coherent sources of light, are called coherent sources of light. If phase difference between two light waves originating from two light sources continuously change with time, then those sources of light are said to be non-coherent sources or incoherent sources of light. यदि दो लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स के बीच कलांतर फेज डिफरेंस टाइम के साथ लगातार कंटिन्यूसली चेंज करता है, तो वैसे दो प्रकाश स्रोत नॉन कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्सेस, हिंदी में अकला संबद्ध स्रोत, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं. एक्चुअली two coherent sources of light is produced, are two virtual sources of light which produce from a single point source or single source of light. वास्तव में दो कला संबद्ध स्रोत, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तब जाकर के उनके बीच, उनसे प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा. इफ टू लाइट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड from two virtual sources,
originating from a single light source. In that case, phase difference between two light waves should be or will be constant, otherwise not. Two independent sources of light never produce coherent sources. Never produce two different light sources are never coherent sources of light. Rather, those light sources are said to be incoherent light sources or non-coherent light sources. For example, two identical bulbs, 60 watt bulbs or 100 watt bulbs, but identical bulbs. Two identical candles, etc., are the examples of two incoherent or non-coherent sources of light. दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स, अगर दोनों बल्ब्स 60 वाट के हैं या 100 वाट के हैं या 40 वाट के हैं, या एलईडी दो 9 वाट के एलईडी सपोज किया जाए, या दो कैंडल आइडेंटिकल कैंडल होने चाहिए, तो उनसे जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस होगा उनके एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन फेज डिफरेंस चूँकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो फेज डिफरेंस लाइट वेव्स के बीच में वह टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगा, वह कंटिन्यूअसली चेंज करेगा. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है कि कैसा सोर्स होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला दो लाइट सोर्सेस तभी कोहेरेंट हो सकता है जब वो सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस हो. सिंगल लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हो तभी जाकर के उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स के बीच का कालांतर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा. दैट इज फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड ऑल्सो अबाउट इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. अब कोहेरेंट सोर्सेस, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को? इसके लिए दो मेथड है. तो राइट डाउन प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट sources of light. There are two methods to produce coherent sources of light. First one is division of wavefront. Number one is division of wavefront. Division of wavefront. In this class, to produce two coherent sources of light, a single wavefront originating from a light source, which may be a point source, is divided into two parts, and both parts, that is both wavefronts, travel separately unequal distances and then combine each other or superposed each other to produce coherent sources of light or to produce interference of light. In this class, that is division of wavefront, coherent sources are produced by Young's double slit experiment. Or by using a biprism, bimirror, etc. Write down. In division of wavefront, a single wavefront originating from
वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, एक सिंगल वेवलेंथ जो ओरिजिनेट होगा किसी लाइट सोर्स से, जो पॉइंट सोर्स हो सकता है या स्लिट हो सकता है, स्लिट को लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करेंगे तो उस स्लिट से प्रोड्यूस होने वाला, स्लिट के किसी पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाला जो लाइट सोर्स हो सकता है, जो कि सिंगल वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा, तो सिंगल वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करेगा। तो सिंगल वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लाइट सोर्स इज इक्वली divided into two parts, and both separated wave fronts, that is two parts, and both separated wave fronts travel on equal distances and then combine each other to produce interference, to produce or coherent sources of light, to produce interference of light. And examples of this class, that is division of wave front, coherent sources produced by this class, that is division of wave fronts, are यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड का ही यूज होकर के एक सिंगल लाइट सोर्स से टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होता है। एक सिंगल लाइट सोर्सेस से दो कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 प्रोड्यूस होते हैं, और उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स आफ्टर सुपरपोजिशन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न on a screen. Young's double slit experiment में टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं इसी क्लास से, दैट इज इसी मेथड से डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा एक और डिवाइस है, ये फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म भी टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करता है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म बाई मिरर, दो मिरर्स के कॉम्बिनेशन से बाई मिरर ETC। These are the devices which produce coherent sources of light by using division of wavefront. Second method to produce coherent sources of light is by division of amplitude. In this class, an incoming light wave from a light source, its amplitude is divided into two or more parts by partial reflection or refraction by using semi-silvered glass plate or semi-transparent mirror. And divided amplitudes of light waves
travel different parts and then combine each other or superposed each other to produce interference of light. So write down by division of amplitude in this class. The amplitude of an incoming wave, the amplitude of an incoming light wave from a single light source, from a single source, from a light source are divided, amplitude of an incoming light wave from a light source are divided into two or more parts, are divided into two or more parts, and each part that is divided amplitude of the incoming wave travels and each part travels different paths to then combine each other or superpose each other to produce interference of light, then combine each other to produce interference of light. And this happens due to partial reflection or partial refraction. Examples of this class, that is coherent sources produced by division of amplitude, Newton's ring, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसमें इन दोनों डिवाइसेस में टू बीम रिफ्लेक्शंस का केस है. न्यूटन्स रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर. लेकिन मल्टीपल बीम्स रिफ्लेक्शन का भी केस फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर, एलजी प्लेट, लूमर गर्लिक प्लेट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इसी क्लास के द्वारा कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होता है तथा इंटरफेरेंस का फिनोमेनन अकर होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से. न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर, जिसमें कि मल्टीपल बीम रिफ्लेक्शन का केस है, और न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू बीम रिफ्लेक्शन का केस है. फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर, एलजी प्लेट ईटीसी. एलजी प्लेट, ल्यूमर गर्लिक प्लेट etc. These are devices in which coherent sources are produced by this method by this class by division of amplitude. In last, we have to discuss principle of superposition and theory of interference. Principle of superposition was given by Thomas Young. If a medium particle is disturbed by two or more light waves simultaneously, then the resultant displacement of the medium particle
is equal to the sum of displacements caused by each light wave. That is resultant displacement y equals to y1 plus y2 plus y3 plus y4, so on, if more than two light waves are present or more than two light waves disturb a medium particle simultaneously. It is called principle of superposition for light waves. Write down, if the resultant displacement of a medium particle due to two or more than two waves, due to light waves, two or more light waves is equal to the sum of individual displacements due to each light waves. That is resultant displacement of a medium particle is y. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो मीडियम पार्टिकल का होगा, अगर दो या दो से अधिक लाइट वेव एक साथ उस मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है या एक साथ वहाँ पहुँचता है, दो या दो से अधिक लाइट वेव उस मीडियम पार्टिकल तक एक साथ पहुँचते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस मीडियम पार्टिकल का प्रत्येक लाइट वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल का, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग लाइट वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल हो जाएगा. डेट इज y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3. If more than two light waves are present, then y is equal to y1 plus y2 plus y3, so on. तो यहाँ पर सेपरेटली ईच लाइट वेव के कारण जो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सम हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस मीडियम पार्टिकल का due to all light waves. So the resultant displacement of a medium particle due to two or more light waves is equal to the sum of displacements due to sum of individual displacement या sum of displacements due to each light waves separately. प्रत्येक लाइट वेव कितना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा उस मीडियम पार्टिकल का. एट ए टाइम एक लाइट वेव उस मीडियम पार्टिकल को जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उस सिचुएशन में सेकेंड लाइट वेव, थर्ड लाइट वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस मीडियम पार्टिकल का, उसको इग्नोर करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे. एट ए टाइम एक ही पार्टिकल के कारण, एक ही लाइट वेव के कारण उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा. इसलिए y1, y2, y3 आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल due to first, second, third light waves respectively, and these are separate displacements of the medium particle due to individual light waves. Now by using this principle of superposition, we can obtain the conditions for constructive and destructive interference. That is, we can discuss theory of interference. So now theory of interference
Suppose a monochromatic light source S produces two coherent sources S1 and S2. The light wave producing from two coherent sources meet at a point P on the screen. We have to find the conditions for constructive and destructive interference. Whether the position point P will be the position of maxima or minima. पॉइंट P मैक्सिमा का पोजीशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा, या मिनिमा का पोजीशन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा, ये हमें मालूम करना है। यहाँ दो सपोज करते हैं कि सिंगल एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है एस, और वह टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करता है S1 एंड S2, और S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाले टू लाइट वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर पहुंचते हैं, और यहाँ एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में S1 और S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स, जो रो लाइट वेव प्रोड्यूस होंगे, तो उसके कारण मीडियम पार्टिकल का किसी इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज किया जाए y1 एंड y2 है। लेट y1 एंड y2 आर डिस्प्लेसमेंट्स y1 and y2 are the displacements of the medium particle due to two light waves producing from light sources S1 and S2. तो y1 जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लाइट वेव्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम लाइट सोर्स टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2, और ये सिंपल हार्मोनिकली होगा। वेव फॉर्म जो होगा लाइट वेव S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव का जो वेव फॉर्म होगा वह कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिकली होगा। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में हमने सपोज किया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस से लेट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस प्रोड्यूसेस टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2 and the light waves originated from both coherent sources S1 and S2 travels through the medium and reach at point P on the screen XY, and propagation of light wave through medium should be considered as simple harmonically. So displacement, we know the displacement of simple harmonic, equation of simple harmonic wave displacement y1 is equal to a cos, sin या cos दोनों लिया जा सकता है, तो cos omega t, this is equation number 1, and where y1 is the displacement of the medium particle due to light wave produced from light source S1, and y2 equals to a cos omega t plus, suppose किया जाए let phi be the phase difference between two interfering waves light waves at point P at any instant t. दोनों लाइट वेव्स जो रीच किया है पॉइंट P पर किसी इंस्टेंट किसी टाइम t पर, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वह कितना है, फाई है। फेज डिफरेंस को हम टाइम या एंगल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो लेट फाई और डेल्टा और फाई और अल्फ़ा कुछ भी लिया जा सकता है फेज डिफरेंस को। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि फेज डिफरेंस फाई है। दोनों लाइट वेव्स जो P पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करते हैं किसी इंस्टेंट T पर, तो उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वह कितना है, फाई है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर फाई is the phase difference between between two light waves originated from S1 and S2 and reach at point P at any instant t. So where phi is the phase difference between two light waves from S1 and S2 at any instant t, at any instant किसी टाइम t पर है, any instant t, जब दोनों लाइट वेव मीट करता है पॉइंट P को, स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंचता है इंस्टेंट t। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2।
Now using the principle of superposition, we have the resultant displacement of the medium particle due to two light waves producing from two coherent sources S1 and S2 is y equals to y1 plus y2, and y1 is a cos omega t and y2 is a cos omega t plus phi, where phi is the phase difference between two light waves reaching at point P at any instant at any time t. Now a is common in both terms, so a can be taken out of the bracket, a cos omega t, a ब्रैकेट के बाहर हो गया, अंदर ब्रैकेट cos omega t plus cos omega t plus phi. अब यहाँ cos c plus cos d का फार्मूला, c के जगह ओमेगा टी और d के जगह ओमेगा टी प्लस फाई, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, that is a 2 cos c omega t cos d omega t plus phi omega t plus phi by 2, that is 2 omega t plus phi by 2, 2 omega t by 2 is equal to omega t plus phi by 2, 2 cos omega t plus phi by 2 into cos c minus d by 2, that is c is here omega t and in place of d here omega t plus phi, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है लेकिन आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस फाई, डेट इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी विल कैंसिल आउट, तो माइनस फाई बाई 2 एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस फाई बाई 2 ओनली, निगेटिव साइन नहीं होगा फार्मूला से. अब यहाँ पर 2a cos फाई बाई 2 ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का टर्म हो गया, 2a cos फाई बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2. अब रिजल्टेंट वेव फॉर्म भी उसी रूप में आया, वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव के फॉर्म में ही उसका एक्सप्रेशन y इजकल टू, और इसको a मान लिया जाए, कैपिटल A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इजकल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a cos फाई बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2, और हमने सपोज किया था displacements due to two waves from coherent sources S1 and S2, y1 is equal to a cos omega t plus y2 is equal and y2 is equal to a cos omega t plus phi. तो यह भी उसी फॉर्म में आ गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी उसी फॉर्म में आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही फॉर्म में या सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के फॉर्म में ही आ गया. तो a cos a 2a cos फाई बाई 2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, a cos omega t plus phi upon 2. This is the expression for resultant displacement. This is equation number 3, where 2a cos phi by 2 is equal to capital A. It is resultant amplitude after superposition of two light waves at point P of the screen xy. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसे इक्वेशन 4 मान लिया जाए. अब हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करना है, पॉइंट पी पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मालूम करना है. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी नो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के होता है, और आई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, I equals to proportionality constant k into a square, where k is a proportionality constant and a का वैल्यू 2a cos फाई बाई 2, तो यहाँ पर a के जगह पर a can be replaced by 2a cos फाई बाई 2 from equation 4, that is k into a 2a cos फाई बाई 2 whole square, that is therefore resultant intensity at point P of the screen is I equals to k 2a square, that is k into 2a square, that is 4a square. यहाँ स्मॉल ए ईच लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच लाइट वेव, तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी.
आई इजकल टू के 4a² cos स्क्वायर 5/2। अब इस एक्सप्रेशन से हमें कंडीशन मालूम करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। We can write k into 4a². This term is also constant, so we can take it as I naught. Therefore, I equals to k into 4a², that is I naught into cos square 5/2, where I naught is the maximum intensity, which is constant. This is equation number 6, where k into 4a² is equal to I naught constant, which is maximum intensity. If now we have to find the conditions for constructive and destructive interference at point P. So for that is for brightness, for constructive interference at point P of the screen, constructive interference, that is to get brightness at point P of the screen. Point P पर brightness पूर्णतः उजाला होने के लिए कंडीशन हमें मालूम करना है फेज डिफरेंस तथा पाथ डिफरेंस के रूप में दोनों लाइट वेव्स के बीच में। एट पॉइंट P वी हैव, if we take phi is equal to 2n pi, that is integral multiple of pi. If phase difference है, phase difference between two light waves is equal to 2n pi, प्लस माइनस किया जा सकता है, प्लस माइनस, प्लस पाई माइनस पाई, n का वैल्यू 0 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है। n 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ cos 0 is equal to 1, तो उस सिचुएशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा k into 4a²। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस कंडीशन से मालूम हो गया। फेज डिफरेंस इक्वल टू होना चाहिए 2n into pi, एंड पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वेशन, ये कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एट पॉइंट P ऑफ द स्क्रीन, जिससे कि ब्राइटनेस ऑब्टेन होगा पॉइंट P पर, जहाँ पर कि लाइट वेव सेम फेज में इंटरफेयर करेंगे। वहाँ सेम फेज का मतलब है दोनों लाइट वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट, दोनों लाइट वेव्स का क्रेस्ट और दोनों लाइट वेव्स का ट्रॉ आपस में एक साथ मीट करेगा, उसको सेम फेज कहा जाता है। और एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरे लाइट वेव के ट्रॉ से इंटरफेयर करेगा तो उसको अपोजिट फेजेज कहा जाएगा। तो अपोजिट फेजेज में डार्कनेस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेम फेज में दो लाइट वेव किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करेंगे तो उस सिचुएशन में ब्राइटनेस होगा, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो फाई इक्वल टू 2n पाई कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जो भी वैल्यू आएगा तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, इसलिए आई इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा आई इक्वल टू k इंटू 4a², और फाई की जगह 2n पाई रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n पाई, अब n का वैल्यू 0 देंगे तो cos 0 1, n का वैल्यू 1 देंगे तो cos पाई -1, a² है तो +1, फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा आई इक्वल टू k², ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया k 4a², आई इक्वल टू आई नॉट, माने मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, जो कि यहाँ पर आई नॉट के इक्वल होगा, k इंटू 4a² को हमने आई नॉट माना है, डेट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया आई मैक्स। और कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होगा, चूँकि फाई इक्वल टू होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, जिसे पार्ट डिफरेंस को वी कैन डिनोट, पार्ट डिफरेंस इज डिनोटेड बाई द सिंबल डेल्टा, देयरफॉर पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फ्रॉम दिस रिलेशन पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज अनदर कंडीशन, ऑल्सो डेल्टा इक्वल टू, अब यहाँ पर होगा डेल्टा इक्वल टू फेज डिफरेंस 2n पाई है, 2n पाई यहाँ हम 2 पाई अगर 2n पाई अगर रखा जाए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो n लेमडा, मतलब पार्ट डिफरेंस होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट P पर, तो फेज डिफरेंस पाई फाई इक्वल टू 2n पाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस हो जाएगा n इंटू लेमडा, that is integral multiple of wavelength of light. Part difference would be integral multiple of wavelength of light. Lambda is the wavelength of light, n is the integer, n is equal to 0 1 2 3 4, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट।
तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2n इंटू लेमडा बाई 2, 2n इंटू लेमडा बाई 2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इवन 2n से मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म को तो हमेशा इवन नंबर आएगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, इवन मल्टीपल 2n इंटू लेमडा बाई 2, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, पार्ट डिफरेंस। तो ये भी कंडीशन आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, लेकिन पार्ट डिफरेंस के टर्म में। डेल्टा इज पार्ट डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस। तो बोथ आर द कंडीशंस, इक्वेशंस 7 and 8 represent the condition for constructive interference at point P of the screen, where brightness will be observed. Now for destructive interference, that is for darkness, that is minimum intensity at point P of the screen. For destructive interference or darkness, constructive interference means brightness. For destructive interference at point P of the screen, we should take phi is equal to odd multiple of pi, either 2n plus 1 or 2n minus 1. Here we are taking 2n plus 1 into pi, that is in a odd multiple of pi. Odd multiple of pi where n is equal to 0, 1, 2, 3. n 0 होगा तो पाई हो जाएगा cos पाई बाई 2, यहाँ पर इस टर्म में रखेंगे i इक्वल टू के रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है k4a² cos स्क्वायर पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। अब n का वैल्यू 1 करेंगे तो रखें, यहाँ रखा जाए 1 तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 पाई, तो 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा सभी का वैल्यू 0 होगा, कॉस का वैल्यू, तो सभी का वैल्यू 0 होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वेशन 5 से फाई का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई रखने पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0। तो ये फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है फेज डिफरेंस के टर्म में, इक्वेशन नंबर 9। एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस डेल्टा, अब डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, यहाँ ट्रेंगल जिसे ट्रेंगल का सिंबल है डेल्टा, उस सिंबल से पार्ट डिफरेंस को डिनोट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1, n लेमडा था यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल होगा, लेमडा बाई 2 हाफ ऑफ द वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। This is also the condition of destructive interference at point P in terms of phase difference, the part difference। और phase difference के रूप में phi is equal to 2n plus 1 into pi, part difference delta is equal to 2n plus 1 into lambda by 2। अब रियल्टेंट फाई का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू फाई इसमें पुट करेंगे तो रियल्टेंट इंटेंसिटी इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा 0, i इज इक्वल टू के इंटू कॉस, कोई भी वैल्यू आएगा पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई रखने पर, तो कॉस का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए i इक्वल टू के इंटू 4a² इंटू 0 दैट इज 0, विच इज मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज darkness will be observed at point P in that case। minimum intensity 0, maximum intensity k into 4a²। this ends the video। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 था, BSc पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेज के लिए, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी से लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोज अपलोडेड, जो कि हमेशा नियमित रूप से वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल से, तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।